بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے 13 دہشت گرد جہنم واصل، سیکیورٹی فورسز کی 2 کامیاب کارروائیاں۔ غزہ بند میں بھارتی سپانسرڈ 10 دہشت گرد مارے گئے، کیچ میں 3 بھارتی سپانسرڈ دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیوں اور شجاعت پر فخر ہے۔ فتنۃ الہندوستان کے مکمل خاتمے کے لیے غیر متزلزل قومی عزم کا اعادہ، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ خزدار میں بھی سیکیورٹی فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، دہشت گردوں کی خواتین کے لباس میں فرار کی کوشش ناکام۔ فتنہ ہندوستان کے 4 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، ISPR۔ نائب وزیر اعظم اور ایران کے وزیر خارجہ کے مابین ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور امن و سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ، عالمی فورمز پر مشترکہ تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس، تجارت، توانائی اور عوامی روابط پر گفتگو، علاقائی ترقی اور اجتماعی فلاح کے فروغ پر زور، خطے کے ممالک سے تعاون بڑھانے کے مواقع پر بات چیت، پاکستان باہمی مفاد پر مبنی تعاون جاری رکھے گا، محمد اسحاق ڈار۔ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک بار پھر مذاکرات کی دعوت، مہذب دنیا میں مطالبات کی منظوری کا واحد راستہ مذاکرات۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر عوامی ایکشن کمیٹی سے مطالبات کے حوالے سے مذاکرات ہوئے، مقدمات کے خاتمے سمیت معطل سرکاری ملازمین کی بحالی کا حکم نامہ جاری ہوا، گندم، بجلی اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے مطالبات منظور کیے گئے، مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنا، وزراء کی تعداد میں کمی پر پیش رفت نہ ہوئی، دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی، 90% مطالبات منظور ہونے کے باوجود احتجاج کیوں؟ 13 گھنٹے طویل مذاکرات ناکام نہیں، تعطل کا شکار ہوئے، تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، پولیس کے 3 جوان شہید، 100 سے زیادہ زخمی ہیں، قیمتی جانوں کی ضیاع پر دکھ ہوا، پرتشدد مظاہروں کے دوران سکول بھی جلایا گیا، احتجاج کو التوا میں رکھیں، مذاکرات میں تعطل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس۔ بھارت کے آزاد کشمیر میں انتشار کی سازش بے نقاب، بھارتی میڈیا کا AI اور جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا، پرانی فوٹیجز اور جعلی ویڈیوز سے کشمیری عوام کے جذبات کو بھڑکانے کی سازش کھل کر سامنے آ گئی۔ جھوٹے بیانیے اور جعلی ویڈیوز کے ذریعے بھارتی میڈیا پہلے ہی اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ کشمیری عوام بار بار جھوٹے پروپیگنڈے کو مسترد کر چکے ہیں۔ بے بنیاد پروپیگنڈے سے کشمیری عوام کے دل سے پاکستان کی محبت ختم نہیں کی جا سکتی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولہ کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ، مسلح شرپسندوں کی جمعیاتی دھیر کوٹ اور ڈڈیال کے علاقوں میں پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ، مسلح شرپسندوں کی فائرنگ سے آزاد کشمیر پولیس کے 3 بہادر جوان شہید، 9 زخمی، مسلح بلوائیوں کی فائرنگ سے متعدد شہری بھی زخمی ہیں۔ پولیس کے تمام شہداء اور زخمی ہونے والوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شرپسند جتھے کا مقصد آزاد کشمیر میں صرف انتشار پھیلانا ہے۔ مری میں کارڈیالوجی سینٹر فعال، گلیات کے عوام بھی مستفید ہوں گے، جلد بائی پاس اور سرجری کا آغاز ہو جائے گا، سڑکوں کا بنیادی ڈھانچہ بہتر بنایا گیا، مری میں کلینک آن ویلز بھی کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مری کے نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ عوامی جمہوریہ چین کا قومی دن، بیجنگ میں مرکزی تقریب کا انعقاد، تیانمن اسکوائر میں پرچم کشائی اور قومی ترانہ، پیپلز لبریشن آرمی کے اعزازی گارڈز کی شاندار پریڈ، ہزاروں شہری صبح سویرے اسکوائر میں جمع ہوئے، ہاتھوں میں قومی پرچم اٹھائے، شرکاء کا جوش و خروش دیدنی۔ ہانگ کانگ میں بھی چین کے قومی دن کے حوالے سے تقریب۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की 76वें कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। ये दिन चीन की शानदार कौमी सफ़र की याद दिलाता है। एक अजीम कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अमन के क़याम में चीन का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लासवाल और नाकाबिल शिकस्त रिश्ता है। गुजरते वक्त के साथ आजमूदा दोस्ती मज़ीद गहरी हुई। वज़ीर आज़म चीन का तरक्की, इतिहाद और इख्तरा का शानदार सफर काबिल फख्र। आजमूदा दोस्ती मजीद गहरी हो रही है। हालिया दौरों में तिजारत और बुनियादी ढांचे के रवाबित को फरोग मिला। स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी ताउन का आज़म मजीद मजबूत हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन के 76वें कौमी दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का हुकूमती कामयाब माशी पॉलिसीज पर भरपूर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 146 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,65,640 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 69 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल। कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर। मुल्की मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए मीडिया का नुमाया किरदार है। मसाइल के हल के लिए मुकालमे का फरोग नागुज़ीर है। सियासी जमातें वफाक और जमहूरी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पार्टी में एक बहुत बड़ी तकसीम आ चुकी है। पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है, क्योंकि शुरू से पार्टी के लोगों को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है और पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। पार्टी के अंदर ऐसी गुरबंदियां बनती जा रही हैं कि उन गुरबंदियों में हर बंदा किसी न किसी जगह का सहारा लेकर उस गुरबंदी का हिस्सा बनकर अपने जो इंटरेस्ट है उनका फायदा ले रहा है। कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं। तो उन सब के साथ अलीमा खान का राब्ता है और अलीमा खान बजाय उनको मना करने के, तकसीम खत्म करने के, बार बार कहते हैं तकसीम नहीं होनी चाहिए, प्रोवोक कर रही है। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पार्टी धड़ों में तकसीम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अंदरूनी इंतशार का एतराफ। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान इख्तलाफात को हवा दे रही हैं। बजट के बाद मेरे खिलाफ गद्दारी की मुहिम चलाई गई। कुछ लोग जाती मफादात के हुसूल के लिए ग्रोहबंदियां कर रहे हैं। अली अमीन का रब्बो। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत का शोबा ज़बू हाले का शिकार। अवाम का इलाज के लिए दूसरे सूबों में जाना सूबाई हुकूमत की बड़ी नाकामी। अस्पतालों में अद्वियात और डॉक्टर्स की भी कमी। लेडी रेडिंग अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लिए चौंका देने वाला फैसला। माजी में मुफ्त दस्तयाब मुख्तस कमरों के लिए अब एक रात के 10,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। सफाक भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। एक माह में सैकड़ों कार्रवाइयां, एक बच्चे समेत 7 कश्मीरी शहीद, 351 गिरफ्तार। लद्दाख में मुसलसल 8 रोज से कर्फ्यू जारी। पाबंदी का सख्त, मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार। श्रीनगर में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर का मरकजी दफ्तर सील। सोपोर में जमात इस्लामी के कारकुनों के घरों पर छापे। भारत के कौमी तराने के दौरान खड़े न होने पर श्रीनगर में 15 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी सदर के अमन मंसूबे के बावजूद गजा पर बमबारी जारी। इजरायली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, 180 जख्मी। बेघर फलस्तीनियों पर बमबारी। स्कूल्स, रिहायशी इलाकों और खैमा बस्तियों को भी निशाना बनाया गया। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला गजा के साहिल के करीब पहुंच गया। 50 बहरी जहाजों में 44 मुल्कों के बाशिंदे शामिल। फिलिपाइन के वस्ती सूबे सैबो में 6.9 शिद्दत का तबाहकुन ज़ल्ज़ला। 69 अफराद हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी। दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। पीटीवी स्पोर्ट्स सबसे आगे। मुल्क में टेलीविजन नशरियात का नया रिकॉर्ड कायम। एशिया कप फाइनल के दौरान पीटीवी स्पोर्ट्स की बेमिसाल रेटिंग 42% की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। 8 से 10 करोड़ अफराद ने एक ही वक्त में
पीटीवी स्पोर्ट्स पर फाइनल मैच देखकर तारीख रकम कर दी। रेटिंग ने साबित कर दिया कि पीटीवी स्पोर्ट्स ही नाजरीन का पसंदीदा तरीन चैनल है। सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय मीडिया को करारा जवाब। भारत क्रिकेट में सियासत को घसीट रहा है। भारत की वजह से खेल की रूह को नुकसान पहुंचा। अगर ट्रॉफी चाहते हो तो एसीसी के दफ्तर में और मुझसे वसूल करो। सरबराह एशियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी खवातीन टीम अपना पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। मैच से कबल प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। और टोक्यो में जापान ओपन टेनिस आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। स्पेनी टेनिस स्टार की 6-4, 6-4 से कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उज़मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बारवाक माँ और बच्चे की सेहत और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पंजाब के 13 अजला में जारी आगोश प्रोग्राम के तहत हामला और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं को दी जाने वाली माली मावनत में 15,000 रुपए का जबरदस्त इजाफा। आगोश में शामिल खवातीन के लिए अब मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में मुआयनों पर माली मावनत 23,000 से बढ़ाकर 38,000 रुपए कर दी गई है। मरकज सेहत पर रजिस्ट्रेशन और पहले तिब्बी मुआयने पर हामला को मिलेंगे 5,000 रुपए और उसके बाद दौरान हमल हर तिब्बी मुआयने पर 3,000 रुपए, जबकि बच्चे की पैदाइश मरकज सेहत के महफूज माहौल में करवाने पर 10,000 रुपए की माली मावनत दी जाएगी। इसके अलावा यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश के इंदिराज और शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाने पर दी जाने वाली रकम 11,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई। बस अपने करीबी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में जाएं और दौरान हमल तिब्बी मुआयना करवाने पर आगोश में रजिस्टर हो जाएं। मैसेज जाने पर किसी भी जायज कैश एजेंट से बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद अपनी रकम बगैर किसी फीस या कटौती के वसूल करें। आगोश प्रोग्राम में अपनी शमूलियत की तस्दीक और बैलेंस मालूम करने के लिए payment.pspa.gop.pk विजिट करें या 1221 पर कॉल करें। माँ और बच्चे की सेहत महफूज मुस्तकबिल की जमानत। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। वेलकम बैक। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। कल और आज बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 13 दहशतगर्द मारे गए। कोयटा में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 10 हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता खारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। केश में किए गए एक और इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। हलाक होने वाले खारिज और दहशतगर्दों के कब्जे से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद और उनके सहूलतकारों को इंसाफ के गहरे में लाने के लिए कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा करती हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला कोयटा और केच में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से 2 कामयाब कार्रवाइयों में फितनल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया है।
वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां करके मुल्क की हिफाजत को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और मौसर कार्रवाइयां काबिल तहसीन हैं। सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम और दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी अज़्म अटल है। कौम अपने सिक्योरिटी एहलकारों की कुर्बानियों और शुजाअत पर फख्र करती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला खुजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड मबनी ऑपरेशन किया, जिसमें हिंदुस्तानी प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने खवातीन के लिबास में बुज़दिलाना तरीके से फरार होने की कोशिश करने वाले 4 दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ, जो इलाके में दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात, खित्ते की उभरती हुई सूरत हाल और अमन और सलामती के लिए जारी सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने दो तरफा और कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि मरी में कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने का वादा पूरा कर दिखाया है। अब मरीजों को इलाज के लिए मरी से रावलपिंडी नहीं जाना पड़ेगा। मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब की तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि दिल के आर्जे में मुब्तला मरीजों को मरी गलियात से रावलपिंडी जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आला हल्फ उठाने के बाद अहद किया कि मरी में कार्डियोलॉजी अस्पताल कायम किया जाएगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पहले दिन ही मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर में 5 मरीजों का इलाज किया गया। मरी अपने अंदर जो है पूरे पाकिस्तान के जो सयाह हैं उनको समेट लेते हैं। मरी में अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसको मरी में वो सहूलत नहीं मिलती। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज कार्डियक सेंटर ने अपना काम शुरू कर दिया। सीरियस कंडीशन जब होती है हार्ट अटैक में, तो वहां पर जो स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगता है उसका स्टॉक मौजूद है, उसको लगाने वाले मौजूद हैं। अगली जो हमारी एंजियोग्राफीज हो रही है उसके लिए पूरा जो डिस्पोजेबल्स हैं, जो रिक्वायर्ड है सप्लाई, सब वहां पर माशाल्लाह मौजूद थे और सैकड़ों लोगों का यहाँ पर माशाल्लाह इलाज हो रहा है। और चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मरी के लिए साफ पानी स्कीम लाने, माल रोड की अपग्रेडेशन, वाइल्ड लाइफ पार्क, बांसरा गली और बायोडाइवर्सिटी पार्क के कयाम, रावलपिंडी से मरी तक ग्लास ट्रेन जल्द चलाने, कोटली सतिया में 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने, मरी से शामली अस्पताल नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर तक शटल बसेस चलाने और मरी में जल्द इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान भी किया। वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दी, इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहाँ भेजी है कि इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। मैं सब कुछ उठा के मरी के पास, मरी के अवाम के पास लेकर आई। मरी की टूरिज्म को न सिर्फ डेवलप करिए बल्कि 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अस्पताल में कैथ लैब का भी दौरा किया और जदीद तरीन कैथ लैब के कयाम पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ज़ेरे इलाज मरीजों से इलाज मुआलजे से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और उन्हें तहाइफ पेश किए। नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर में CCU, HDU और 3 स्पेशल वार्ड्स कायम किए गए हैं। मरी पहुँचने पर आवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल किया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पार्लिमानी अमूर के विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को दोबारा मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि जन्नत नज़ीर वादी में एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ किसी के मफाद में नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दोनों रहनुमाओं का यह कहना था कि 2 मुतालबात की मंजूरी के लिए कश्मीर के आइन में तरमीम पर इत्तफाक भी किया गया, लेकिन एहतजाज की आड़ में तशद्दुद की कार्रवाइयाँ समझ से बालातर हैं।
रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को खुले दिल से दोबारा मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज किसी के मफाद में नहीं। आज़ाद कश्मीर हमारे दिलों के बहुत करीब है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात में दो नुकात जो हल तलब थे उनके हल के लिए आज़ाद कश्मीर के आईन में तरामीम पर इत्तफाक पाया गया था। जितने भी मुतालबात जो कि काबिल अमल थे, और मैं ये कहूँगा कि 90% मुतालबात वो तस्लीम कर लिए गए। दो ऐसे मुतालबात थे जिनमें एक जो मुहाजिरीन की सीटें हैं उनको ख़त्म करना, जो हमारी वहाँ पे वजारतें हैं आज़ाद कश्मीर की उनकी तादाद में कमी। दोनों मुतालबात ऐसे थे जिसके लिए आज़ाद कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट दरकार थी, और जितने भी आपके दीगर मुतालबात हैं जो कि 38 के करीब थे उन्हें भी इंशाअल्लाह ताला हम यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि हम मुसलसल मुज़ाकरात का अमल बहाल करने के लिए कोशां हैं। अवामी एक्शन कमेटी भी इस सिलसिले में आगे बढ़े। ये कतई तौर पे एक पुरअमन एहतजाज नहीं है, पुरतशद्दुद एहतजाज से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जन्नत नज़ीर वादी के अंदर इस तरह का वायलेंस, इस तरह का तशद्दुद किसी भी मामले का हल नहीं है। एक्शन कमेटी के तमाम मेंबरान आज भी बैठे, हम तैयार हैं और इस मामले को खुश असलूबी के साथ बातचीत के ज़रिए हल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि मुहज़्ज़िब दुनिया में किसी भी इशू के हल के लिए मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद वाक़यात की फौरी रोकथाम वक्त की अहम ज़रूरत है। आज जो नागुफ्ता बे सूरत हाल पैदा हुई है, इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल, जो इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस, दुख है, तकलीफ़ है। पुलिस के जवान हैं 3, वो शहीद हुए। रियासत में जो ऐसे अनासर जिनके बारे में शायद आपके इल्म व यकीन में भी बात नहीं है कि ये आपकी सफ़ों में घुस के किस लेवल का इंतशार और कत्ल गारतगरी का प्रोग्राम बना रहे हैं। हुकूमत पूरी फराख दिली से वफाकी हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी आज़ाद कश्मीर तशरीफ़ ले गई थी, उसी के तसलसल में आपको मुज़ाकराती अमल बहाल करने की दावत देते हुए आपसे ये कहना चाहती है कि मज़ीद जो तशद्दुद है या मज़ीद अनारकी है और मज़ीद अफरा तफरी है, इससे बाहर सूरत हमें ग्रेज करने की ज़रूरत है। एक सवाल के जवाब में चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वो गुज़श्ता 2 हफ्तों से कमेटी अरकान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मुसलसल मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को मनफी रंग देकर भारतीय मीडिया अपने मज़मूम मकासद हासिल करने की कोशिश करने लगा। भारतीय मीडिया मुसलसल AI और जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। पुरानी फुटेजेस और जाली वीडियोस से कश्मीरी अवाम के जज्बात को भड़काने की साजिश खुलकर सामने आ गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग में अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को ड्रामाई अंदाज में पेश किया जा रहा है। भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर में होने वाले एहतजाज को यकसर हक़ाइक़ के बरक्स पेश कर रहा है। झूठे बयानी और जाली वीडियोस के जरिए भारतीय मीडिया पहले ही अपनी साख खो चुका है। कश्मीरी अवाम बारहा झूठे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर चुके हैं। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे से कश्मीरी अवाम के दिल से पाकिस्तान की मोहब्बत ख़त्म नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर चीन की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इस दिन पर मैं चीनी अवाम की तरक्की, खुशहाली और कामयाबी के लिए दुआगो हूँ। ये दिन न सिर्फ चीन के शानदार कौमी सफ़र की याद दहानी है, बल्कि एक अजीम कौम की तरक्की, इस्तेहकाम और आलमी सतह पर अमन के क़याम में चीन के किरदार का भी एतराफ़ है। सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ और मिसाली क़यादत में चीन ने तरक्की और खुशहाली के ऐसे संगमील अबूर किए हैं जो दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एक लाजवाल और नाकाबिले शिकस्त रिश्ता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद मजबूत हुआ है। ये रिश्ता बाहमी एतमाद, कुर्बानी और इखलास पर मबनी है और हमारी आने वाली नस्लों के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी हमारा चीन के साथ इंतहाई अहम मुश्तरका माशी मंसूबा है जो अब अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र करता है और हम पुरुम्मीद हैं कि दोनों ममालिक अपनी दोस्ती और शराकतदारी को नए संगमील तक लेकर जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अवामी जमहूरिया चीन के 76वें कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने चीनी भाइयों और बहनों के साथ इस दिन को मनाते हैं जो चीन के शानदार सफ़र, तरक्की, इत्तेहाद और कौमी पेशरफ्त की अलामत है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज़ क़यादत ने चीन को जिद्दत और पायदार तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचाया है।
सदर ममलिकत ने कहा कि हर गुजरते साल के साथ पाकिस्तान और चीन की हमअतशहत और आजमूदा दोस्ती मजीद मुस्तहकम हो रही है। सदर ममलिकत ने सदर शी जिनपिंग की मुसलसल कामयाबी और चीन के अवाम की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि हमारी दोस्ती आने वाले बरसों में मजीद मजबूत होगी। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में इलाकाई मुल्कों के साथ ताउन बढ़ाने के मौक़े के जायज़ा इजलास की सदारत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में तिजारत, मवासलाती रवाबित, तवानाई और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान इलाकाई तरक्की और मुश्तरका खुशहाली में पेशरफ्त के लिए बाहिमी मुफीद ताउन जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से बैरोनेस नौशीना मुबारक ने मुलाकात की। इस मौके पर पाक बरतानिया दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती, पार्लिमानी तबादलों की अहमियत और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। बैरोनेस नौशीना मुबारक ने पाकिस्तान में सैलाब से बहाली के बारे में भी दरियाफ्त किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए बैरोनेस नौशीना मुबारक की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान और अमरीका तवानाई, मादनियात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ दे रहे हैं और पाकिस्तान अक्टूबर में वाशिंगटन में एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने जा रहा है ताकि अमरीकी सरमायाकारों को राग़िब किया जा सके। इस्लामाबाद में ब्लूमबर्ग न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका ने अमरीकी कंपनी स्ट्रेटेजिक मेटल्स की जानिब से $500 मिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया है। नई तिजारती डील के तहत अमरीका ने पाकिस्तान के लिए 19% टैक्स मुकर्रर किया, जो कि खित्ते के दीगर ममालिक से कम है और इससे पाकिस्तान की बरामदी मुसाबिकत में इजाफा और मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मदद मिली है। पाकिस्तान ने मंगल को $500 मिलियन का बॉन्ड भी अदा कर दिया है। पाकिस्तान के हिस्से में सरमायाकारों की दिलचस्पी बढ़ी है। कुछ यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें। कारोबारी दुनिया के उतार चढ़ाव के हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान रहा और 100 इंडेक्स 140 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बुलंद तरीन सतह 1,65,640 पर बंद हुआ। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 486 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज बाजार हिस्सेस में 69 अरब 66 करोड़ रुपए की लागत के 5,15,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से वज़ीर ममलिकत ख़ज़ाना और रेलवे बिलाल अज़रकियानी ने अबू ज़बी में मुलाकात की। इस मुलाकात में वज़ीर ममलकत ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से UAE के सदर और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम पहुँचाया। UAE के सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया गया। बिलाल अज़रकियानी अबू धाबी में आलमी रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नुमाइश और कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करते चलें, जहां भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी की मुसलसल कार्रवाइयों में गुज़श्ता माह सितंबर के दौरान एक कम उम्र लड़के समेत 7 कश्मीरियों को शहीद किया। KMS के मुताबिक इनमें से 3 जारी मुकाबलों में शहीद किए गए। फौजियों ने गुज़श्ता माह के दौरान मुहासरत तलाशी की 163 कार्रवाइयाँ की, जिनमें 351 शहरियों को गिरफ्तार किया गया। पुरअमन मुजाहिरीन पर फौज की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से 100 से ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए। BJP हुकूमत ने इस अरसे के दौरान मकानात और ज़मीनों समेत कश्मीरियों की 9 जायदादें जब्त कर लीं। लद्दाख के लेह और किरगिल अजला में कर्फ्यू और सख्त पाबंदियाँ आज मुसलसल 8वें रोज़ भी जारी रहीं और काबिज़ फोर्सेस ने पूरे खित्ते का सख्त मुहासरा कर रखा है। मोबाइल इंटरनेट समेत तमाम मवासलाती सर्विसेज मुअत्तल हैं। 4 या इससे ज़्यादा अफराद के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी है और पूरे खित्ते में भारतीय फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकार भारी तादाद में तैनात हैं। भारतीय हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। लेह एपिक्स बॉडी के बाद किरगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बातचीत से पीछे हट गई है। भारतीय पुलिस ने सोपुर में जमात इस्लामी के कारकुन के घरों पर छापे मारे और तलाशी ली। पुलिस ने छापों के दौरान बैंक रिकॉर्ड और जायदाद की मलकियत की दस्तावेजात जब्त कर लीं। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के मरकजी दफ्तर को भी सील कर दिया। दूसरी जानिब श्रीनगर में पुलिस फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान भारतीय कौमी तराने पर खड़ा न होने की बर्दाश्त में भारतीय पुलिस ने 15 कश्मीरी शायकीन को गिरफ्तार कर लिया। फाइनल मैच के मौके पर नई दिल्ली के मुसल्लत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद थे।
अमरीकी सदर के मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के बावजूद गजा पर जारी इसराइली बर्बरियत में कमी न आ सकी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली फोर्सेज के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 180 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक गाज़ा में इजरायली मुहासरे और कहत की सूरत हाल के बायस बच्चों की भूख से अमवात में इजाफा हो रहा है। भूख से मजीद 2 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत से जाम बहक अफराद की तादाद 455 हो गई है। इनमें 151 बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सहयूनी फोर्सेज की गाज़ा शहर में तोपखाने से शदीद गोलाबारी हो रही है। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 5 फ़लस्तीनी भी सहयूनी बर्बरियत का निशाना बने। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे पर इजराइल ने फ़िज़ाई हमला किया, जिससे एक ही ख़ानदान के 3 अफराद शहीद हो गए। नसीरात पनागज़ीन कैंप पर बमबारी हुई। इजरायली हमलों से गजा का सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। हमास के मुज़ाकराती कमेटी ने दोहा में तुर्की, मिस्र और कतर के हुकाम के साथ बातचीत की। हमास कमेटी के अरकान का कहना है कि सदर ट्रंप का मंसूबा एक हसास मामला है और हमास को सोच विचार के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए। हमास के रहनुमा ने बाज़ तजावीज़ पेश की हैं और मंसूबे की बात शिकों में तरमीम का मुतालबा किया है। तुर्क, मिस्र और कतर के हुकाम ने हमास पर जोर दिया कि वो सदर ट्रंप के मंसूबे को कबूल कर लें। अमेरिका ने दोहा पर इसराइली हमले के बाद कतर की सलामती की जमानत देते हुए किसी भी हमले की सूरत में फौजी कार्रवाई का ऐलान किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कतर पर किसी भी हमले को अमेरिका पर हमला तस्वुर किया जाएगा। कतर के दिफा के लिए फौजी कार्रवाई समेत तमाम इकदाम करेंगे। कतर अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जिद्दोजहद में अमेरिका का साबित कदम इत्तेहादी है। उनके मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करवाई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। और बुलेटिन में एक बार फिर से शामिल करते हैं हम कौमी खबरें। सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे एहतमाम अदलिया की डिजिटलाइजेशन के हवाले से लॉ एंड जस्टिस कमीशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ैली इदारे नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के माबैन इस्लामाबाद में वफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस शाहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वजीर शाहज़ा फातिमा ने शिरकत की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट में ई ऑफिस सिस्टम का बाकायदा आगाज़ किया गया, जिसके बाद अदालत उस्मा का तमाम दफ्तरी काम और फाइल की तरसील डिजिटलाइज हो जाएगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी से सेनेटर गुरदीप सिंह, सेनेटर असद कासिम, सेनेटर सरदार मोहम्मद उमर गुरगेज, सेनेटर फरीद चित्राली और साबिक रुकन कौमी असम्बली मायसा हमीद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। कायम मकाम सदर ने मुल्क में इत्तेहाद और मुफाहमत के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर देते हुए कहा कि कौमी चैलेंजेस से निमटने के लिए हम आहंगी और मुकालमा ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम और जामे तरक्की नागुज़ीर है। कायम मकाम सदर ने मुल्क में जारी सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बरवक्त इमदाद और बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुश्तरका इक़दाम ज़रूरी हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, आगाही फैलाएं। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव की शरह 90% से ज्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के महीने के मौके पर वीडियो पैगाम में खातून अव्वल का कहना है कि हम मिलकर जिंदगियां बचा सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। हर साल पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान खो देती हैं। 90,000 से ज्यादा नए मरीज डायग्नोस होती है, बहुत से उस वक्त जब देर हो चुकी होती है। मगर याद रखें, वक्त पर पहचान और सही इलाज से ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट 90% से ज्यादा है। एक सादा सेल्फ एग्जाम और वक्त पर स्क्रीनिंग हजारों जिंदगियां बचा सकती है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने सवात में सैलाब मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। जो लोग फौत पा चुके, शहीद हो गए या जख्मी या दूसरे, तो वही एक ही जगह से मिलते हैं और वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है और वो मुआवजा देते हैं। हमने कभी इस तरह केस कभी देखा नहीं। ये पहली दफ़ा हमने उनसे दरख्वास्त की कि अगर सूबाई हुकूमत कंपनसेशन दे भी रहे, दी भी, तो आपको मरकज़ की तरफ से भी इन लोगों की मदद कर लेनी चाहिए। और उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी करके और सबके लिए सूबाई हुकूमत के अलावा मरकज़ी हुकूमत से भी
20-20 लाख की चेक उन शुहदा के वर्सा के लिए अनाउंस भी कर दिए। और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की कंट्री मैनेजर मिस नाज ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाकिस्तान के इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के जारी मंसूबों पर बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। दूर दराज पसमानदा इलाकों में टेली मेडिसिन के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 68% बीमारियां आलूदा पानी के बायस पैदा होती हैं। साफ पानी की फराहमी से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वज़ारत कौमी सेहत की गुज़श्ता 6 माह की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की सदारत में इश्तराकी ज़राअत के हवाले से इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई दी जाएगी। हुकूमत जदीद गोदाम, प्रोसेसिंग यूनिट्स और पैकेजिंग मराकज़ कायम करेगी। इशराकी ज़राअत से मिडल मैन का किरदार ख़त्म होगा और किसान को मुनसिफाना मुनाफा मिलेगा। राना तनवीर हुसैन ने वैल्यू एडिशन और इंटरक्रॉपिंग से ज़रूरी पैदावार में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर सेनेटर आज़म नज़ीर तारर से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नदाली बेकर ने मुलाकात की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहमी एहतराम और ताउन पर उस्तवार हैं। वज़ीर आज़म के वाशिंगटन दौरे से दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला है। आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि पाकिस्तान सियासी, मुआशी और समाजी शोबों में ताउन का ख़्वाह है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा है कि मसनूई ज़हानत के लिए जामे आलमी फ्रेमवर्क तश्कील देना नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम मसनूई ज़हानत पर आलमी मुकालमे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि AI निज़ाम को इंसानी हुकूक और SDGs के मुताबिक बनाना होगा। आलमी मुकालमा तरक्की पज़ीर मुल्कों के लिए इल्म और इस्तेदाद में खला पुर करने का ज़रिया बने। अनुशा रहमान ने कहा कि तरक्की पज़ीर मुल्कों की मसावी नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए। सेनेटर अनुशा रहमान ने बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों के डेटा और प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि गलत मालूमात के सद्देबाब के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। सेनेटर अनुशा रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत AI फ़ंड कायम करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी जमातें जमहूरी इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करें। मसाइल के हल के लिए मकालमे का फ़रोग़ ज़रूरी है। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान हर बहरान से कामयाबी से निकला है। मुल्क की मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए मीडिया का नुमायां किरदार है। ये अल्लाह का फजल है कि सियासी जमातों ने, हुकूमत ने, अफवाज ने, सब ने मिल के, जिसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, पाकिस्तान के इमेज को बुलंद किया। अल्लाह का फजल करम शामिल रहा और एक स्टेबिलिटी की सूरत हाल बनी जिस पे कौम को सुकून की कैफियत भी हुई। अपने इदारों के साथ भी हम खड़े हैं और जो एक बेचैनी थी उसमें कुछ ठहराव आया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हज़रों में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। हमने हमेशा मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं। गवर्नर ने कहा कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। पंजाब में सैलाब ज़दगान की मुश्किलात का अजाला किया जाएगा। तहसील अटक और हज़रू के लिए इलेक्ट्रिक बसें और पासपोर्ट ऑफिस का क़याम अमल में लाया जा रहा है। सस्ती और म्यारी सफरी सहूलियात अटक और हज़रू के आवाम तक पहुँचाएँगे। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि अमरीकी सदर का गजा अमन के लिए 20 निकाती फार्मूले को मुस्लिम ममालिक ने खैर मकदम किया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर का 20 निकाती फार्मूला हतमी नहीं, इस पर बातचीत और मुशावरत होगी। हमें एक आजाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत चाहिए है और यह आलम इस्लाम का मुत्तफिका फैसला है, यह पाकिस्तान का मुत्तफिका फैसला है, यह पाकिस्तान की रियासत का फैसला है। किस तरह बगैर गौर व फिक्र के कुछ लोग सिर्फ अपनी सियासत के लिए हर चीज को मुतनाज़े बना देते हैं। किस तरह फलस्तीनियों के खून से कोई गद्दारी कर सकता है? किसने इसराइल से ताल्लुक कायम किया है? क्या कोई बता सकता है? या हर वक्त मुश्किल से मुश्किल मामला हो, आसान से आसान मामला हो, हमने उस पर सियासत करनी है?
पेशावर से आपको खबर देते हैं, जिसके सबसे बड़े सरकारी अस्पताल लेडी रीडिंग में मरीजों ने एक रात का बेड रेट 10,000 रुपए मरीजों के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। मजीद बताएंगे अख्तर खान। खैबर पुख्तनख्वा में आवाम के टैक्स के पैसों से चलने वाले सबसे बड़े सरकारी हस्पताल लेडी रीडिंग हस्पताल में इलाज की सहूलत अब गरीब मरीजों की दस्तरस से बाहर होता दिखाई दे रहा है। LRH इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एक हालिया नोटिफिकेशन में बताया गया है कि हस्पताल में प्राइवेट कमरों की एक रात की फीस 10,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, जो कि शहर के महंगे प्राइवेट हस्पतालों से भी ज्यादा है। MTI सिस्टम के तहत नाफिज की गई ये पॉलिसी इस्लाहात के बजाय मरीजों पर बोझ बनकर सामने आई है। LRH मुफ्त इलाज का एक मरकज था। खैबर पुख्तनख्वा के तौल अर्ज से लोग आते थे यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए। अब जब ये जुल्म हुआ कि एक कमरा 10,000, तो मेरे ख्याल में किसी होटल में, किसी प्राइवेट मेडिकल सेंटर में और LRH में क्या फ़र्क रह गया। अगर ये 4,000 से ये किराया बढ़ा के 10,000 रुपये करते हैं तो ये इसी अवाम के साथ ज्यादती है और ये इनके दावों की नफी है। खैबर पुख्तनख्वा असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद करीम कुंडी ने LRH इंतजामिया के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ईवान में तवज्जो दिलाओ नोटिस कराया है। दूसरी जानिब लेडी रीडिंग हस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम का कहना है कि ये फीस सिर्फ प्राइवेट मरीजों के लिए है, इससे आम मरीजों के इलाज पर कोई असर नहीं होगा। अवाम ने PTI पर इसलिए एतमाद किया था कि सेहत और तालीम में बुनियादी सहूलियात आसान और बेहतर होगी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि सरकारी हस्पतालों में भी मुफ्त इलाज की सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। वफाकी सेक्रेटरी सनअत व पैदावार सैफ अंजुम ने पैव की स्कीम के तहत पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पहली ई-बैलेटिंग का इस्लामाबाद में इफ्तिताह किया। बैलेटिंग के जरिए गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और चारों सूबों के शहरियों को सब्सिडी शुदा इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 3 पहिया गाड़ियां अलॉट की गई हैं। मजमूई तौर पर 2,69,000 दरखास्तें मौसूल हुई। आज की कुरान अंदाजी में 40,000 इलेक्ट्रिक 2 पहिया गाड़ियाँ और 1,000 इलेक्ट्रिक 3 पहिया गाड़ियाँ कामयाब दरखास्त गुजारों को अलॉट की गई। कौमी असम्बली की मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर सैयद समीउल हसन गिलानी की सदारत में हुआ। पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इजलास में वजारत मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, खजाना, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी लिमिटेड और सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी को सौंपे गए मनसूबों पर काम का जायजा लिया गया। इजलास को सूबों को मुंतकिल होने वाली स्कीम्स, इन पर अमल दरामद और वफाक के किरदार से भी आगाह किया गया। इशारों की ज़बान के आलमी दिन के हवाले से कुव्वत समात से महरूम बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद इसी तकरीब के हवाले से बता रहे हैं सईद वजीर। ज़बान इंसानों के दरमियान मौसर राब्ते का अहम जरिया है। इशारों की ज़बान के आलमी दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कुव्वत समाज से महरूम बच्चों की पनफारों और हाथ से तैयार की गई मुख्तलिफ अशिया की नुमाइश की गई। आज इस एग्जीबिशन में हमारे डेफ बच्चों का बहुत ही प्यारा, अनीक और ख़ास काम भी डिस्प्ले किया गया है, और भी हमारे जो अतफाल बाहा माजूरी हैं उनकी भी स्टॉल्स लगे हैं। उनका काम देख के यहाँ पे आने वाले लोग हैरान भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी हुए हैं। शुरका का कहना था कि पनपारे और हाथ से बनी मुनफरिद अशिया कुव्वत समाज से महरूम बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों और महारत का सबूत है। मुझे लगता है कि आर्ट थेरेपी इज़ द बेस्ट टूल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो चाहे ऑटिस्टिक बच्चा है, चाहे वो ADHD बच्चा है, चाहे वो किसी हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है, चाहे वो जिनकी ज़ुबान नहीं है, आर्ट हमेशा अच्छा टूल रहा है और ये बहुत एक्सप्रेसिव वे है अपनी बात को आगे पहुंचाने का। माजूर अफराद को तालीम के साथ रोजगार के मौके फराहम करने से न सिर्फ इनकी खुद मुख्तारी में इजाफा किया जा सकता है, बल्कि ये मुफीदी शहरी बनकर मुल्क की तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मूसीकार अख्तर अल्लादिता के इंतकाल को 1 साल बीत चुका है, लेकिन उनकी तरतीब शुदा मूसीकी की धुनें आज भी सुनने वालों के कानों में रस खोलती हैं। तफसील बता रही हैं अरीबा ज़ीशान। अख्तर अल्लादिता पाकिस्तानी मौसीकी के उफ़क़ पर रोशन रहने वाला एक सितारा। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने सुर की धुनों में ज़िंदगी के जज्बात समोने का हुनर जाना।
अख्तर अलादित्ता 1953 में कराची में पैदा हुए और 1976 में पाकिस्तान टेलीविजन से वाबस्ता हुए। उनका पहला प्रोग्राम फरोज़ा था, जिसमें उनकी मौसीकी की महक ने सामाइन को चौंका दिया। कुछ ही अरसे बाद शोएब मंसूर के मारूफ म्यूजिक शो झरना में उन्होंने आलमगीर की आवाज़ में गाए गए गीत एक ही नाम के कितने चेहरे के लिए मौसीकी तरतीब दी और यूँ उनकी शनाख्त एक बाकमाल मौसीकार के तौर पर उभर कर सामने आई। एक ही नाम के कितने चेहरे, चेहरे याद रखूं या। उन्होंने मुमताज़ शौरा के कलाम को अपनी धुनों में ऐसा समोया कि वो नगमे अपनी मिसाल आप हुए। फिल्मों और टीवी के लिए उन्होंने 300 से ज़ायद गानों की धुनें तरतीब दी, जो आज भी सामाइन के दिलों को छू लेती हैं। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में पाकिस्तान टेलीविज़न ने उन्हें 2 मरतबा नेशनल अवार्ड से भी नवाजा। लाजवाल गीतों के ये मौसीकार हरकत कल्ब बंद होने के बायस 1 अक्टूबर 2024 को कराची में इंतकाल कर गए। उनका नाम पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख का रोशन बाप रहेगा। अली बज़शान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। बुजुर्ग अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने और उनके मसाइल को उजागर करने के लिए आज दुनिया भर में मुअम्मर अफराद का आलमी दिन मनाया गया। कराची से रिपोर्ट करेंगी सिद्रा फातिमा। घरों के सहन में बैठे नाना नानी, दादा दादी और मोहल्ले के बुजुर्ग सिर्फ अफराद नहीं बल्कि सदियों का तजर्बा, हिकमत और मुआशरे का बेमोल सरमाया है, जिन्होंने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वक्फ कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 1 अक्टूबर 1990 में मुअम्मर अफराद के इस दिन को मख्तस किए जाने का मकसद बुजुर्गों की खिदमात को सराहना है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में बुजुर्गों की फलाह के लिए स्पेशल हेल्थ कार्ड्स, ओल्ड एज होम्स और दीगर प्रोग्राम्स बनाए गए ताकि बुजुर्ग अफराद के मसाइल को हल किया जा सके। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक बढ़ती हुई उम्र के साथ बुजुर्गों को न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती और समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि उन्हें तन्हाई के बजाय मोहब्बत, इज्जत और तवज्जो दी जाए। बुजुर्गों की जहनी सेहत और खुशी के लिए उनके साथ जहाँ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है, वहाँ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने वालिदैन को सिर्फ ये नहीं कीजिए कि वो बीमार हैं या वो बूढ़े हो रहे हैं तो आप उन्हें घर बिठा दीजिए, बल्कि आप उनको जितना वो फारिग वक्त गुजारें उसमें उनको अच्छी एक्टिविटीज़ में भी शामिल कीजिए। आलमी यौम मुअम्मर अफराद का ये दिन इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि बुजुर्गों को इज्जत देना, उनका ख्याल रखना और उनकी दुआओं को अपनी जिंदगी का सहारा बनाना न सिर्फ हमारी समाजी जिम्मेदारी है बल्कि ये हमारी तहजीबी और मजहबी इक़दार का भी तकाजा है। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। हालिया बारिशों और सैलाब से लाखों अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों के साथ साथ निजी फलाही इदारे भी मसरूफ़ अमल हैं। अहमद फराज रिपोर्ट करेंगे। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान मुतासरा अवाम की खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रस्ट के हुक्काम ने बताया कि मुल्क भर में हालिया सैलाब के बाद अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट की तरफ से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ अजला में बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहीं। अब तक मुतासरीन में 9,46,000 से ज्यादा तैयार खाने के पैकेट्स तकसीम किए जा चुके हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में लगाए गए इमदादी कैंपों में 12,700 से ज्यादा मरीजों का इलाज, मुआलजे समेत मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई हैं। शदीद मुतासरा मुकामात पर 10 खेमा बस्तियां कायम की गई हैं। मुतासरीन के मवेशियों के लिए 60,000 किलोग्राम चारा मुहैया किया गया, जबकि लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए 20 कश्तियों का इंतजाम किया गया। इन तमाम सरगर्मियों में 6,500 रजाकार दिन रात मुतासरा अवाम की खिदमत में मसरूफ रहे। जब ये सैलाब जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ा तो हमने 10 टेंट टाउन्स 10 कैमा बस्तियाँ लगाईं। उनके अंदर तकरीबन 6,000 अफराद हमारे पास मुस्तकिल मुकीम रहे। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने हालिया सैलाब के दौरान पंजाब के 22 अजला में और खैबर पख्तूनख्वा के 2 ज़िलों में और सिंध के 3 ज़िलों में सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू और रिलीफ का वर्क किया। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट का कहना है कि मुतासरीन की बहाली तक ये सिलसिला जारी रहेगा और अवाम से अपील है कि इस नेक मकसद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सैलाब के मुतासरीन की मदद करना हर फर्द का फर्ज है और इस नेक काम में हम सबको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अहमद फराज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد، خطہ پوٹھوار اور زیریں سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ پاکستان ٹیلی ویژن نے ایک مرتبہ پھر تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ وی ٹی وی سپورٹس پر نشر ہونے والے ایشیا کپ کے فائنل نے پاکستان میں ٹیلی ویژن کی نشریاتی تاریخ میں اہم سنگ میل عبور کیا۔ تفصیل جانیے نثار مہدی سے۔ T20 ایشیا کپ میں جہاں کھلاڑیوں نے متعدد ریکارڈز قائم کیے، وہیں پی ٹی وی سپورٹس بھی پیچھے نہ رہا اور پاکستان میں نشریات کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ میڈیا لاجک ریپڈ میٹر کے مطابق فائنل میچ کے دوران ریٹنگز نے بے مثال بلندی حاصل کی اور 42% کی بلند ترین سطح کو چھو لیا۔ اس سے پہلے پاکستان میں سب سے زیادہ ریٹنگ اے آر وائی ڈیجیٹل کے ڈرامے میرے پاس تم ہو کو ملی تھی، جو 32% ریکارڈ کی گئی تھی۔ تاہم ایشیا کپ کے فائنل نے یہ ریکارڈ توڑ دیا اور براہ راست کھیلوں کے پروگرامز کو ملکی سطح پر سب سے زیادہ دیکھے جانے والا نشریاتی ایونٹ بنا دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ٹی وی ناظرین کا دائرہ کار 18 سے 20 کروڑ کے درمیان ہے، جن میں سے 8 سے 10 کروڑ افراد ایک ہی وقت میں پی ٹی وی سپورٹس پر فائنل میچ دیکھتے رہے۔ یہ پاکستان میں کسی بھی ٹیلی ویژن نشریات کے لیے ایک غیر معمولی اور تاریخی سنگ میل ہے۔ اس شاندار کامیابی نے ثابت کیا کہ کرکٹ سب سے زیادہ پسند کیے جانے والا کھیل ہے اور پاکستانی عوام کا اس کھیل کے حوالے سے جوش و جذبات اتنی ہے۔ ہمیشہ کی طرح پی ٹی وی سپورٹس نے ایک مرتبہ پھر ایشیا کپ کے دوران اپنی براہ راست کوریج کے ذریعے ملک بھر کے ناظرین کو جوڑے رکھا اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی وی سپورٹس ناظرین کا پسندیدہ ٹی وی چینل ہے اور کوئی دوسرا چینل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی کا بھارتی میڈیا کو کرارا جواب۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں محسن نقوی نے کہا کہ بھارت کرکٹ میں سیاست کو گھسیٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے کھیل کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اے سی سی کے سربراہ نے کہا کہ بھارتی میڈیا کا مقصد صرف اپنے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ میں نے بی سی سی آئی سے کبھی معافی نہیں مانگی ہے اور نہ ہی کبھی ایسا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی میڈیا من گھڑت اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں پھیلا رہا۔ بطور سربراہ ایشین کرکٹ کونسل میں اس دن ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا اور اب بھی تیار ہوں۔ اگر واقعی ٹرافی لینا چاہتے ہیں تو اے سی سی کے دفتر میں آئیں اور مجھ سے ٹرافی وصول کریں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے T20 پلیئرز کی نئی رینکنگ جاری کر دی۔ قومی کرکٹر سائم ایوب آل راؤنڈرز میں 4 درجے ترقی کے بعد ٹاپ پوزیشن پر چلے گئے۔ بھارت کے ہاردک پانڈیا کو دوسری اور افغانستان کے محمد نبی کو تیسری پوزیشن حاصل ہے۔ T20 بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ پاکستان کے صاحبزادہ فرحان 11 درجے بہتری کے بعد 13ویں نمبر پر آ گئے۔ بولرز میں بھارت کے ورن چکرورتی کا پہلا نمبر برقرار ہے۔ پاکستان کے ابرار احمد 3 درجے تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر چلے گئے۔ آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 327 رنز کا ہدف دیا ہے۔ جواب میں نیوزی لینڈ ویمنز کی بیٹنگ جاری ہے۔ اندور میں جاری میچ میں آسٹریلین ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 49.3 اوورز میں 326 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایشلی گارڈنر نے 83 گیندوں پر 115 رنز کی اننگز کھیلی۔ فیبی نے 45 اور کم گارٹ نے 38 رن سکور کیے۔ نیوزی لینڈ کی جیسکر اور لیا تاہوہو نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ اور سپورٹس نیوز کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ دیجیے اجازت۔ پی ٹی وی نیوز پر یہاں وقت ایک بریک کا۔ بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔